Greetings to you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं। One more time, we are thrilled to come into the presence of God with you all as you are online with us. और जैसे कि आप हम सबके साथ ऑनलाइन हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के एक बार फिर से हर्षित हैं। As we are having this Good Friday today, और जैसे कि आज जो है शुभ शुक्रवार का दिन है, and this is not the day that we are going to mourn on it or we are going to become sad like that. और आज का दिन ऐसा नहीं है कि हम कराहें और दुखित हों। Why? क्यों? Because Jesus is not on the cross. क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के ऊपर भी नहीं है। But then we are remembering. लेकिन हम उसको याद कर रहे हैं। What are those 7 sayings Jesus said from the cross? और वो 7 वाणियां कौन सी हैं जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से कही? And that's how we have to see everything what Jesus did on the cross. और इसलिए हम उन चीजों को देखते हैं जो यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर में करी। Let's start the service with a word of prayer. आइए हम वचन की प्रार्थना के साथ में इस सभा की शुरुआत करेंगे। Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम से I come before Thee हम आपके सामने में आते हैं and bring Your people, O God, before Thee, O God. और खुदा तेरे लोगों को तेरे सामने में लाते हैं। As we are going to just meditate on the 7 sayings of Jesus Christ from the cross, और क्रूस के ऊपर से यीशु मसीह ने जो 7 वाणियां बोली, जब हम उसके ऊपर में मनन करते हैं, Lord, reveal Your plans and purpose from the heaven. What you want, O Lord Master. परमेश्वर स्वर्ग से तू अपनी योजनाओं को खुदावन जाहिर कर। Thank you, Lord. धन्यवाद। Holy Spirit, we allow you to do the Heavenly Father's will over here. और पवित्र आत्मा, हम आपको अनुमति देते हैं कि यहाँ पर आप स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करें। Giving you all glory. सारी महिमा। This is your awesome time. और ये आपका अद्भुत समय। God the Father, और परमेश्वर पिता, God the Son Jesus Christ, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, God the Holy Spirit the Comforter. और परमेश्वर पवित्र आत्मा सहायक, Oh, be with us. हमारे साथ में Be with us, with everybody who is going to reveal what God has told them. और उन सभी लोगों के साथ में रहे जो जिनको परमेश्वर ने जो है प्रदर्शित किया है क्या बोलने के लिए, So that their voice should not be heard, ताकि उनकी आवाज ना सुनी जा सके, but let your voice shall be लेकिन heard. आपकी आवाज सुनी जा सके। Thank you for doing it. धन्यवाद पिता से करने। In Jesus' name I pray. यीशु नाम से प्रार्थना। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Beloved people of तो God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we just greet you all in the name of Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से हमने अभी आपको अभिवादन Before किया। we start, तो इससे पहले कि हम शुरू करें, and we will go to just meditate on every saying. और हर एक जो वाणी है उसके ऊपर में हम मनन करेंगे। Before that, I want to just give some 7 words which Adam never had into his dictionary. और उससे पहले आदम के द्वारा दी गई शब्दावली में जो है 7 ऐसे शब्द थे जो नहीं थे, उसके बारे में मैं बताऊंगा। As you may be aware of it, और जैसे कि आप इसके बारे में जानते हो, according to Bible, और बाइबल के अनुसार the first dictionary was given by Adam. और पहली जो शब्दावली है वो आदम के द्वारा दी He गई, was carrying the very glory of God Almighty. और वो जो है परमेश्वर के समान महिमा को जो है लेकर के चलता था। So when we are meditating on these 7 sayings, और जब हम इन 7 वाणियों के ऊपर में मनन we कर रहे need to हैं, understand हमें समझना आवश्यक है। when Jesus spoke from the cross और जब यीशु ने उस क्रूस के ऊपर से बोला, for just forgiving the persecutors, और जो सताने वालों को माफ करने के लिए, the first word Jesus was having into his dictionary, और यीशु मसीह की शब्दावली में जो पहला शब्द था वो था, it is forgiveness. और वो है माफ करना। Adam never had that word. और आदम के पास में वो शब्द नहीं था, Jesus brought it from the cross. और यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर से लेकर के आया। So the forgiveness came from the cross itself. तो माफ करना जो है वो क्रूस के ऊपर में से आया। And this first word was given by Jesus himself. और ये वो शब्द था पहला जो यीशु के द्वारा दिया गया। Second word, दूसरा शब्द, you know why Jesus went on the cross of आप Calvary? जानते हैं क्यों कलवरी की क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह To गया? provide the salvation of the humanity. और इस मानव जाति को उद्धार देने के लिए। So beloved people of तो God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, the second word और दूसरा जो शब्द है, from the second saying Jesus brought, और जो यीशु मसीह ने दूसरी वाणी बोली, when he said to the thief, और जब उसने चोर से कहा, today you shall be with me in the paradise. कि तू आज ही स्वर्ग राज्य में मेरे साथ में होगा, Oh, he gave the salvation to the thief also. और उसने चोर को भी उद्धार दिया। So salvation is the second word which Jesus brought from the sayings and from the cross. तो दूसरा जो शब्द है जो क्रूस पर से यीशु मसीह ने बोला वो है उद्धार। Third word, और तीसरा शब्द, we can see it, he said to his mother, और तीसरा शब्द है जो हम देख सकते हैं जो उसने अपनी माँ से बोला, women, behold your son.
और कि हे महिला ये तेरा पुत्र है। And to the disciple to whom he loved so much, और उस शिष्य से जिससे वो प्रेम करता था, this is your mother. उससे कहा कि ये तेरी माँ है, Because he was knowing one thing. क्योंकि वो एक बात जानता था, His mother will lose the love of a son. क्योंकि वो जानता था कि उसकी माता जो है वो एक पुत्र के प्रेम को खोने वाली है, And she will not be able to taken care of by other things like that. और क्योंकि उसका देखभाल करने वाला कोई नहीं था दूसरी चीजों के लिए। So the third word which I am bringing from this cross is, और तीसरा शब्द जो इस क्रूस के ऊपर से लेकर के आया, it is affection. और वो है स्नेह। Are you understanding क्या आप समझ रहे हैं? why he was hanging on the cross? और क्यों वो उस क्रूस के ऊपर में था? But he was having care for mother and the ministry people, his disciple. और लेकिन उसके पास में चिंता थी अपनी माता के लिए और सेवा करने वाले अपने शिष्यों के लिए। Jesus is an affectionate God. और तो यीशु मसीह जो है वो स्नेही परमेश्वर है। That's why he brought the word affection from the cross. और इसीलिए वो क्रूस के ऊपर से उस स्नेह शब्द को लेकर के आया। Fourth thing, चौथी बात, Bible says, बाइबल कहती है, he just cried with a loud voice. और उसने जो है ऊंचे शब्द से रो करके कहा, Eli Eli lama sabachthani. उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? My God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Because the very purpose of Jesus क्योंकि यीशु मसीह का उद्देश्य to going on the cross, और उस क्रूस के ऊपर में जाने का there was only one केवल purpose, एक ही उद्देश्य था, to reconcile the human beings with God who were not reconciled yet. और वो उद्देश्य ये था कि जो लोग थे उनका मेल मिलाप परमेश्वर से कराना जो कि उनसे अलग हो गए थे। When the sins were put on him, और जब पाप उसके ऊपर में डाले गए, that very time, God just turned his face from Jesus और Christ. उस समय जो है परमेश्वर ने अपना मुख यीशु मसीह से अलग कर लिया, But that very moment, और उसी समय God, he reconciled man with the God. और उसी समय यीशु मसीह ने जो है लोगों का जो मनुष्य है उसका परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर दिया, That's how we became the children of God. और इसी प्रकार से आज हम जो है परमेश्वर की संतान हैं। So the fourth word Jesus brought from the cross is reconciliation. और चौथा शब्द जो है वो है मेल मिलाप जो क्रूस के ऊपर से आया। Fifth one, पांचवा, he said, I thirst. और उसने कहा मैं प्यासा हूँ, I thirst. उसने कहा मैं प्यासा हूँ, For what thing he was thirsty? और किस चीज के लिए वो जो प्यासा था? Human beings were actually away from righteousness. और मानव जाति जो है वो धार्मिकता से अलग थी, And because of unrighteousness, और अधार्मिकता के कारण से, because of unholiness, और अपवित्रता के कारण से, the humanity was not having that blessings which God kept for their lives. और इसी उस पाप के कारण से मानव जाति के पास में वो आशीष नहीं थी जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी हुई थी। Jesus was thirsty और यीशु मसीह प्यासा था, so that this blessing should come to the humanity. ताकि ये जो आशीष है ये मानव जाति के पास में आ जाए। क्या आप समझ रहे हैं? This is very much important to understand. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के Beloved लिए। people of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, when he was thirsty, और जो प्यासा था, blessing is the fifth word. और आशीष जो है वो पांचवा शब्द है, He brought it from the cross for our lives. और उसने हमारे जीवन के लिए क्रूस के ऊपर से लेकर के आया। Come to the sixth saying. और छठवीं वाणी When he said, जब उसने कहा it is finished. कि ये पूरा हुआ, It is finished. ये पूरा हुआ, It is finished. ये पूरा हुआ। What was finished? और क्या पूरा हुआ? Bible says बाइबल कहती है, in Galatians 3:13. और गलातियों 3:13 में, He became a curse and he was crucified, hanged on the tree. और वो श्रापित हुआ और वो काट के ऊपर में लटकाया गया। He became curse for myself and yourself. वो मेरे लिए और आपके लिए जो है वो श्राप बना। That's how he finished the curse. और इस प्रकार से उसने पाप को खत्म किया। And then he brought the victory for the humanity. और उसके बाद में मानव जाति के लिए वो जय को लेकर के So आया। the next word is victory. तो अगला जो शब्द है वो है जय। People of God, परमेश्वर के लोगों, if you are living a life which is not having the victorious life, you need to come to Jesus Christ. और परमेश्वर के लोगों, यदि आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें जय नहीं है तो आपको परमेश्वर के पास में आना चाहिए। Jesus fought your battle on the cross of Calvary. यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर से आपकी लड़ाई को लड़ा है, And he has given you the और victory. उसने आपको जय दी है, Victory is yours. और जय आपकी है, And you should not deny it. और आपको इसको नकारना नहीं चाहिए। So victory is the
sixth word which Jesus brought from the cross. और जो छठवां शब्द है वो है जय, जो यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से लेकर के आया। After finishing all the tasks, और सारी कार्यों को पूरा करने के बाद, completing the work of the salvation of human beings, और मानव जाति के लिए उद्धार का कार्य पूरा होने के बाद, providing the affection and blessings and victory, और स्नेह, आशीष और जय को देने के बाद, then seventh word, सातवां वचन, when he spoke from the cross, और उस क्रूस के ऊपर से जो उसने बोला, Bible says he cried out in a loud voice, और बाइबल हमको बताती है कि वो ऊंचे शब्द से रोकर पुकारने लगा, Father, I commend my spirit into your hands. और पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में देता हूँ। The first Adam was not having obedience before God. और पहला जो आदम था वो परमेश्वर के सामने में आज्ञाकारी नहीं रह सका। That's why Bible says, इसी कारण बाइबल कहती है, by first Adam, पहले आदम के द्वारा से the sin came into the world और संसार में पाप आया, because he was disobedient to God. क्योंकि वो परमेश्वर के लिए अनाज्ञाकारी था। But Jesus is the second Adam. लेकिन यीशु मसीह दूसरा आदम, When second Adam came, जब दूसरा आदम आया he's hanging on the cross. और वो क्रूस के ऊपर में लटकाया गया, But then he said one particular thing. लेकिन उसने एक निश्चित चीज कही, What is that? और वो क्या है? And that is the obedience. और वो है आज्ञाकारिता। Even to the point of his death, और उसके मृत्यु के समय तक भी he was obedient to his father. वो अपने पिता के लिए आज्ञाकारी बना रहा। Again, these 7 words और एक बार फिर से ये सातों वचन must be part of our lives today. वो आज हमारे जीवन का भाग होना We चाहिए। must forgive the people. हमें लोगों को माफ करना चाहिए, We must be the people who are working for the salvation of others. और हमें वो लोग होने चाहिए जो दूसरों के उद्धार का कारण बन We सके, must be affectionate people. और हमें जो है स्नेही लोग होना चाहिए। We must be the people who will reconcile the unrighteous generation to God. हमें वो लोग होना चाहिए जो अधार्मिक लोगों को परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप करा सके, We shall be the people who shall become the blessing for others. और हमें वो लोग होना चाहिए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो, We shall be the people who shall become a channel for victory for others. और हमें वो लोग होना चाहिए जो दूसरों के जय का कारण बन सके। And all in all, और जो सबसे महत्वपूर्ण, you must be an obedient child of God. और आपको परमेश्वर की आज्ञाकारी संतान होना चाहिए। Friends, this is all from here. और यहाँ से ही इतना ही था And मित्रों। I want that co-leaders of our Shalom Bride of Christ Church, और हम चाहते हैं कि हमारे शालोम ब्राइड ऑफ क्राइस्ट कलीसिया के जो अगुए हैं, they will be coming. और वो ऐसे बन जाएं, And they will be coming and putting the light on those 7 sayings. और वो आएंगे और जो है इन सातों वाणियां हैं इनके ऊपर में प्रकाश डालेंगे। But before that, लेकिन उससे पहले let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से, as we are just putting that revelation on the 7 sayings of Jesus from the cross, और जैसे कि यीशु मसीह के द्वारा उस क्रूस के ऊपर से बोले गए सातों वाणियों के ऊपर में प्रकाश डाला है खुदा। Father, we pray, पिता प्रार्थना करते हैं, let every child of yours और होने दे कि तेरी हर एक संतान shall receive the special revelation वो एक विशेष प्रकाशन को प्राप्त कर सके and speak और बोले what God wants to speak on these things. और जो परमेश्वर इन सातों वाणियों से बोलना चाहता है। In Jesus' name, Lord, यीशु मसीह के नाम से खुदा, I anoint them और मैं उनको अभिषिक्त करता हूँ so that they shall speak the voice of God. ताकि वो परमेश्वर की आवाज को बोल सके। Even the group of our choir, Lord, Shekinah choir, when they are going to sing the songs, और जब आराधना का दल भी परमेश्वर गीतों को गाता है, they shall be anointed right now, Lord, और वो इसी समय अभिषिक्त हो जाए and खुदा, shall sing for the glory of और God. परमेश्वर की महिमा के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से प्रार्थना। Amen and amen. आमीन आमीन। May God bless you. This is going to be a time that we are going to sing a song for the glory और of God. परमेश्वर आपको आशीष दे, और ये वो समय होगा जो लोग जो परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को So गाएंगे। Bible says, बाइबल कहती है, He just allowed the will of God to happen in Jesus' life. Sorry? Jesus allowed it to happen, the will of God into his life. और यीशु मसीह ने खुद के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए अनुमति दी है। We are going to sing that will of Jesus over here. और हम यीशु मसीह की इच्छा को यहाँ पर Shekinah worship team will come. और शकायना आराधना का दल यहाँ पर आएगा। हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, मेरी नहीं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो जाए, मेरी नहीं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो जाए, हो सके तो ये प्याला मुझसे ढल जाए, हो सके
खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो जाए। मेरी नहीं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो जाए। जैसे आसमां पे तेरी मर्जी होती है, जैसे आसमां पे तेरी मर्जी होती है, वैसे ही जमीन पर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। वैसे ही जमीन पर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। मौत को भी मात देकर तेरी राह चुनी, मौत को भी मात देकर तेरी राह चुनी। हर मुश्किल को गले लगाकर तेरी बात सुनी, हर मुश्किल को गले लगाकर तेरी बात सुनी। मौत को भी मात देकर तेरी राह चुनी, हर मुश्किल को गले लगाकर तेरी बात सुनी। जैसे मसीहा तेरा काबिल बेटा बना, जैसे मसीहा तेरा काबिल बेटा बना, वैसे ही खुदावन तेरे काबिल बेटे बन जाए। वैसे ही खुदावन तेरे काबिल बेटे बन जाए। दुआ सुनकर भी वो देता रहा दुआ, दुआ सुनकर भी वो देता रहा दुआ। जिसने उसकी जान ली उसको भी माफ किया, जिसने उसकी जान ली उसको भी माफ किया। दुआ सुनकर भी वो देता रहा दुआ, जिसने उसकी जान ली उसको भी माफ किया। जैसे मसीहा तेरा काबिल बेटा बना, जैसे मसीहा तेरा काबिल बेटा बना, वैसे ही खुदावन तेरे काबिल बेटे बन जाए। वैसे ही खुदावन तेरे काबिल बेटे बन जाए। हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। मेरी नहीं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो जाए। मेरी नहीं खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो जाए।